السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، ایمسن ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمز الائیو۔ ملک میں GST کے نئے سلیب کا آغاز، وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، سیونگ فیسٹیول سے کیا گیا تعبیر، قوم سے معافی چاہنے وزیر اعظم سے کانگریس کا مطالبہ۔ ہائی کورٹ سے لوکل باڈی انتخابات منعقد کرنے کی مہلت مانگنے کا حکومت کا فیصلہ، مہلت نہ ملنے پر 42% تحفظات فراہمی کے لیے GO جاری کیا جائے گا۔ سیلاب سے حیدرآباد میں ہونے والی اموات کے لیے ریونت ریڈی ذمہ دار، ہریش راؤ کا الزام، سکندرآباد کے علاقے میں متاثرین میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ قطب اللہ پور حلقے میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی، 100 ایکڑ سے زیادہ غیر قانونی قبضے کے خلاف کیا اقدام۔
اور رائے درگم پولیس اسٹیشن حدود میں خوفناک سڑک حادثہ، 2 نوجوان ہلاک، تیز رفتار کار نے اسکوٹی کو دی ٹکر، ڈرائیور گرفتار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں پیر 22 ستمبر سے جی ایس ٹی کے نئے سلیب کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسے جی ایس ٹی کو سیونگ فیسٹیول سے تعبیر کیا اور کہا کہ نوراتری کے موقع پر ٹیکس میں اصلاحات کے اس عمل سے 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور سلیب کی شرح اب صرف 5 اور 18% ہو جائے گی۔ انہوں نے سودیشی یعنی دیسی اشیاء کا نعرہ دیا اور عوام سے کہا کہ وہ فخر سے کہیں کہ میں دیسی اشیاء کا استعمال کر رہا ہوں۔ 2017 سے نافذ کیے گئے جی ایس ٹی کے 4 سلیب کے بجائے اب صرف 2 سلیب رہیں گے۔ اشیاء ضروریہ کے علاوہ آٹو موبائلز کے مختلف زمروں میں بھی ٹیکس کی راحت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ 99% اشیاء جس پر پہلے مختلف ٹیکس ہوا کرتے رہے ان کی جگہ اب یہ 2 سلیب رہیں گے۔ ماضی میں 12% ٹیکس والی اشیاء کو اب 5% کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے عمل سے پہلے مختلف نوعیت کے ٹیکس ہوا کرتے تھے، انٹری ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز، ویٹ، سروس ٹیکس اور اس طرح کے 1 درجن ٹیکس ہوا کرتے تھے، جس سے کاروبار کرنے والوں کو بھی اور عوام کو بھی مشکلات ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہ یاب افراد کو 12 لاکھ روپے سالانہ کی حد تک ٹیکس سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ یہ اصلاحات متوسط طبقے کو خاطر خواہ فائدہ پہنچائیں گی۔ ہم نے شہریوں کے خواب کو پورا کیا ہے تاکہ وہ ٹیکس رعایت کے ذریعے گھر بنا سکیں، اسکوٹر یا کار خرید سکیں۔ سفر کے دوران ہوٹل کے کرائے میں بھی اس سے کمی ہوگی۔ انہوں نے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں، کاٹیج انڈسٹریز اور دیگر چھوٹے صنعتوں کے لیے ٹیکس راحت کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ان کی مصنوعات کو فروغ دیا جائے گا۔ اصلاحات کی اس عمل سے معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جی ایس ٹی کے اصلاحات پر دکاندار بہت پرجوش ہیں۔ اس عمل سے عوام کو 2.5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت ہوگی، اس لیے اس بچت کو بچت فیسٹیول بھی کہا جا رہا ہے۔ 22 ستمبر کو سوریودے کے ساتھ ہی نیکسٹ جنریشن جی ایس ٹی ریفارمز لاگو ہو جائیں گے۔ ایک طرح سے کل سے دیش میں جی ایس ٹی بچت اتسو شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس جی ایس ٹی بچت اتسو میں آپ کی بچت بڑھے گی اور آپ اپنی پسند کی چیزوں کو اور زیادہ آسانی سے خرید پائیں گے۔ ہمارے دیش کے غریب، مدھیم ورگیہ لوگ، نیو مڈل کلاس، یوا، کسان، مہیلائیں، دکاندار، ویاپاری، ادیمی، سبھی کو یہ بچت اتسو کا بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی تیوہاروں کے اس موسم میں سب کا منہ میٹھا ہوگا، دیش کے ہر پریوار کی خوشیاں بڑھے گی۔ میں دیش کے کوٹی کوٹی پریوار جنوں کو نیکسٹ جنریشن جی ایس ٹی ریفارمز کی اور اس بچت اتسو کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں، شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ جی ایس ٹی میں اصلاحات سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کے قوم سے خطاب پر کانگریس نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور 2017 سے اب تک ٹیکس کی لوٹ کھسوٹ پر قوم سے معافی چاہنے کا مطالبہ کیا۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस धूम धड़ाक के साथ 2017 में पार्लियामेंट का नीम शबी इजलास तलब करके कौम को तोहफा देने का ऐलान किया गया था, उस पर उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसी वक्त जीएसटी के उस तरीक़ेकार की मुखालिफत की थी और मुसलसल इसमें इस्लाहात का मुतालबा करती आ रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान हुकूमत ने जीएसटी के जरिए कौम पर माली बोझ डालने का जो गुनाह किया है, इसके लिए वज़ीर आज़म को शर्मसार होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट से मजीद मोहल्लत तलब करने का फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का वज़रा के साथ हुआ ख़ुसूसी इजलास में इस मसले पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो मोहल्लत दी है 30 सितंबर है। इसके लिए अभी मजीद 10 दिन बाकी हैं, जबकि 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर क़तई फ़ैसला नहीं हुआ है। जबकि रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए अपने उमूर पर अमल मुकम्मल कर लिया है। जब तक हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में गज़ट पेश नहीं किया जाता, इंतखाबी एलामिया मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ 42% तहफ़्फ़ुज़ात बिल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हाई कोर्ट इजाज़त दे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतज़ार करेंगे। इसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबात को नागुज़ीर करार देने पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ख़ुसूसी जियो जारी किया जाएगा और इंतखाबात मुनक़्क़िद करेंगे। इस जियो में रुकावट पैदा होगी तो पार्टी सतह पर बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेडाराम जात्रा के तरक्याती कामों का 23 तारीख को जायजा लेंगे। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बेचारियों की तजवीज़ और उनकी मंजूरी के बाद ही तरक्याती कामों का डिज़ाइन जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि जात्रा के कामों के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। मौजूदा मंदिर के अहाते को पुजारियों की ख्वाहिश के मुताबिक मज़ीद वसअत देने के इक़दाम पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि गैर मक़दमी दरवाज़ों के डिज़ाइन में क़बायली तहज़ीब की झलक पेश की जाए ताकि इलाके की क़बायली शनाख्त वाज़ेह हो। वज़ीर आला के दौरे के दौरान वज़रा, क़बायली अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना साथ रहेंगे। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आलमाटी डैम पर दहली में तेलंगाना का मौक़िफ़ वाज़ेह किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आलमाटी डैम की ऊंचाई में इजाफे की तेलंगाना हुकूमत खिलाफ है। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर आलमाटी डैम पर तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में कालेश्वरम की तामीर हुई है, इस पर भी तहक़ीक़ात जारी हैं। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना का जो हिस्सा है, इसको हासिल करके रहेंगे। सिकंदराबाद के रामगोपालपेट डिवीज़न के कस्तूरबा नगर में साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में मुतासरा 1500 ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया तक़सीम की गईं। इस मौके पर बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर हरीश राव भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। सैलाब से मुतासरीन की मदद करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। प्री मानसून में किए जाने वाले इक़दामात न करने की वजह से हैदराबाद में सैलाब आया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खुद बलदिया के वज़ीर होते हुए भी 1 रुपए की मदद नहीं की। हैदराबाद में 7 ता 8 लोग बहकर जाँ बहक हो गए। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को फोर्थ सिटी, पोर्ट सिटी की बातें करने के बजाय मौजूदा शहर को दुरुस्त करना चाहिए। रेवंत रेड्डी में बलदिया इंतखाबात कराने की उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं है। హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు 7-8 మంది నాలాల్లో కొట్టుకొని చనిపోయారు. ఇవాళ ఈ చనిపోవడానికి కారణం ఇది రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యము, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం. వరద బాధితులకు కనీసం నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇవ్వలేదు, కనీస సహాయం కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ మా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు దాదాపు 1500 మందికి ఇవాళ వివిధ బస్తీల్లో వరదతో ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. వెంగళరావు నగర్ గాని, గైడెన్ బాగ్ గాని, చుట్టాల బస్తీ గాని, కంచెబౌలి గాని, అదేవిధంగా కస్తూర్బా నగర్,
నల్లగుట్ట, కరీం కాంపౌండ్, ధోబిఘాట్ ఇలా దాదాపు ఎన్నో బస్తీల్లో 1500 కుటుంబాలకు గౌరవనీయులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు నిత్యావసర వస్తువులు అందించారు. ఇలా ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది, రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోలేదు. కానీ తలసాని శ్రీనన్న మాత్రం తన వంతు సాయంగా ఈ రోజు ఈ బస్తీ ప్రజల్ని తను ఆదుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకు అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు మున్సిపల్ మంత్రిగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా అన్ని బస్తీలన్నీ కూడా ఇలా మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి, గుంతలమయమైపోయింది. చాలా చోట్ల కరెంట్ ఇబ్బంది జరిగింది, రోడ్లన్నీ కూడా పోయినాయి. ఆ గుంతలు బూడ్చే తెలివి లేదు కానీ 4th సిటీ గురించి మాత్రం ఏదో పోజులు కొడతా ఉన్నాడు. ఉన్న సిటీని పట్టించుకో, ముందు ఉన్న సిటీల్లో నాలాలు సాఫ్ చేయి, ఉన్న సిటీలో రోడ్లను బాగు చేయి. ఇది విడిచిపెట్టి కాంట్రాక్టర్ల కోసం 4th సిటీ అని 6 లైన్ రోడ్లు వేసుకుంటూ చేరినాడు. ఇలా ప్రజల గురించి నువ్వు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. రేవంత్ రెడ్డి ఇలా పూర్తిగా బరి తెగించిండు. ఎవడన్నా బరి తెగించి బజార్లో నిలబడితే ఏమంటాం వాడిని? అట్లయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితి. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद कर दी है। नई फीस $1 लाख अमेरिकी डॉलर रखी गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि एक बार की फीस है, सालाना फीस नहीं है और इसका इतलाक सिर्फ नई दरख्वास्तों पर होगा। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह भी वाज़ेह किया कि नया उसूल सिर्फ नई गैर दायर दरख्वास्तों पर लागू होगा। यह फीस मौजूदा H-1B वीज़ा होल्डर्स या बैरून मुल्क रहने वालों पर लागू नहीं होगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच की तारीख का ऐलान किया है। ग्रुप 2 के लिए दिसंबर 2022 में एलामिया जारी किया गया था। क्वालिफाइड उम्मीदवारों के नाम कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए हैं। सर्टिफिकेट्स की जांच सितंबर की 23 और 24 को दिन के 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक तेलुगु यूनिवर्सिटी बागयाम्मा नामपल्ली पर होगी और महफूज दिन 25 सितंबर होगा। तमाम क्वालिफाइड उम्मीदवार मुकर्ररा तवारीख और मुकर्ररा वक्त पर अपने सर्टिफिकेट्स की जांच करवा लें। तारीख के गुजरने के बाद उनका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। टैंक बंड पर बीजेपी की जानिब से नमो युवा 3 के रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव, मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र मौजूद थे। 3 के रन को हरी झंडी दिखाने के बाद रुकने पार्लियामेंट ए राजेंद्र ने कहा कि नौजवान ऑनलाइन गेम्स के 22 लाखों रुपए गंवा रहे हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे मुनशियात के मराकज़ बनते जा रहे हैं, जिससे तलबा और नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रखने और शऊर बेदारी पैदा करने के लिए इस रन का अहतमाम किया गया है। मदरसे दावतुल कुरान मोइन बाग के ज़ेर एहतमाम ईदी बाज़ार में इजलास आम तकमील हिफ्ज़ुल कुरान मजीद व दर्स ख़त्म बुखारी शरीफ मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें क़ायद मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर 128 तलबा और तालिबात की दस्तारबंदी की गई और उन्हें असनाद दिए गए। इस मौके पर क़ायद मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा दूसरों ने खिताब किया, जबकि हज़रत मौलाना मोहम्मद शुएबुल्लाह खान शरवानी ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया मिर्ज़ा सलीम बेग और मुकामी उलमा कराम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हुफ़्फ़ाज़ अकराम व उलमाए दीन इस दुनिया के लिए बाइस बरकत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हुफ़्फ़ाज़ उलमाए कराम की वजह से हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक का आगाज़ हुआ था। उन्होंने अपनी जानिब से दीनी तालीम और ऐसे मदारिस के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इस मौके पर कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील करने वाले 128 हुफ़्फ़ाज़ इकराम को असनादात पेश किए गए। ज़िला मलकाजगिरी के खुतबुल्लाहपुर हल्के गा जोलाराम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इतवार की सुबह से हाइड्रा की निदामी कार्रवाई जारी है। हाइड्रा के मुताबिक रियासती मालियाती कॉरपोरेशन को अलॉट करदा 300 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी पर 100 एकड़ पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ने
कुल सर्वे नंबर 307 का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात कायम थीं। इन्हदामी कार्रवाई के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इतवार की सुबह से ये इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे मुकामी अफराद में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था कि उन्होंने भारी रकूमात अदा करते हुए ये मकानात खरीदे हैं। विकाराबाद मंडल के इलाके कोड़ंगल में मास्टर प्लान के नाम पर छिल्ले महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की एक दरगाह और कब्रिस्तानों को मिस्मार कर दिया गया। सदर मजलिस को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को कोड़ंगल रवाना किया। मजलिस की जानिब से मज़कूरा मकामात मुक़द्दसा को मिस्मार करने पर कोड़ंगल चौराहे अम्बेडकर मुजस्समे के दामन के पास शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद मुकामी पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कोड़ंगल पहुंचकर एहतजाजियों को रिहा करवाया और उन्होंने मज़कूरा मुक़द्दस मकामात का मुआयना किया। उन्होंने विकाराबाद पुलिस के एसपी से शिकायत की कि कोड़ंगल के कमिश्नर बलदिया ने तासुब का मुजाहरा करते हुए रात देर गए मजहबी मकामात को मिस्मार किया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कोड़ंगल में अमन की बरकरारी के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर विकाराबाद मजलिस के ज़िम्मेदार, तांडूर मजलिस के सदर के अलावा कोड़ंगल के मजलिसी ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने गंडीपेट के कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडरों और अवाम को मजलिस पार्टी में शामिल किया। इस सिलसिले में गंडीपेट में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। रहमत बेग कादरी ने मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर मजलिस पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उनकी पार्टी में शामिल होने वालों ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मजलिस में शामिल होना चाहते हैं। बाद में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के GHMC के अहदेदारों के हमराह शास्त्रीपुरम की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुकामी अफराद से उन्हें शिकायत मौसूल हुई थी, कचरे की निकासी और सफाई नहीं हो रही थी। उन्होंने अहदेदारों को कहा कि तमाम कामों के बशमूल तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दारुस्सलाम में CM रिलीफ फंड के 110 चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत के मज़कूरा फंड से 110 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफ़ादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रहमत बेग से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अराकीन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद और अजहर के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर मुर्तज़ा भी मौजूद थे। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले नज़ीर फहद और अब्दुल अहदुद्दीन खान हफ्ते की रात स्कूटी पर गच्छी बावली जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में नज़ीर फहद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद ज़ख्मी अब्दुल अहदुद्दीन खान हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मरहूमीन के इंतकाल पर मुकामी अफराद और अजीज़ व क़ारिब ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की है। मेहदीपट्टनम आर्मी एरिया में तामीरी काम के दौरान स्लैब गिरने से एक नौजवान मजदूर की मौत वाक़ हो गई। महबूब नगर के रहने वाले हालिया मुकीम फर्स्ट लांसर के मोहम्मद मुहीत को मिलिट्री ओहदेदारों ने एक मखदूश इमारत को तोड़ने के लिए मजदूरी पर बुलाया था, जहां काम के दौरान छत गिरने से मोहम्मद मुहीत की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन वहां पहुंचे और लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात करने और महलूक को मुनासिब एक्स ग्रेशिया हवाले करने पर जोर दिया।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क में GST के नए स्लैब का आगाज, वजीर आजम का कौम से खिताब, सेविंग फेस्टिवल से किया गया ताबीर, कौम से माफी चाहने वजीर आजम से कांग्रेस का मुतालबा। हाई कोर्ट से लोकल बॉडी इंतखाबात मुनक्किद करने की मोहल्लत मांगने का हुकूमत का फैसला। मोहल्लत न मिलने पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहमी के लिए GO जारी किया जाएगा। सैलाब से हैदराबाद में होने वाली अमवात के लिए रेवंत रेड्डी जिम्मेदार। हरीश राव का इल्जाम, सिकंदराबाद के इलाके में मुतासरीन में जरूरी अशिया की तकसीम। खुतबुल्लाहपुर हल्के में हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाई, 100 एकड़ से ज्यादा गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ किया इक़दाम। और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को दी टक्कर, ड्राइवर गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।